Hello students. Hello students, your next topic is shortest distance between two lines. Now what is the shortest distance between two lines? If two lines are parallel, then the shortest distance between two lines is the perpendicular distance. As you can see, you have two lines, line 1 and line 2. और अगर आपको इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो वो आपका हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट इज कि अगर आपकी लाइंस पैरेलल नहीं है, ना ही वो इंटरसेक्ट कर रही है, इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल, neither parallel nor intersecting, then what will you do? Then such pair of lines are called non-coplanar and these lines are called the skew lines. These lines are called skew lines. Now we are going to study about the skew lines. What are the skew lines? Let us. If you have two lines, line 1 and line 2, then these lines are called the skew lines. These two lines L1 and L2, both lines are the skew lines because neither they are parallel nor they are intersecting each other. Now we have to find the distance between the skew lines. Now what is the distance between two skew lines? ठीक है, तो अगर हमारे पास लाइंस हैं तो लाइंस की कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म भी होगी, राइट। तो मैं लाइंस की वेक्टर फॉर्म लिखती हूँ, लाइक इस लाइन को मैंने लिया है आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, जैसे हमने एंगल के टाइम पे फाइंड किया था, एंड r वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। सो लेट मी राइट इट अगेन। तो हमें इन दो लाइंस के बीच में निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, क्योंकि हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो इन दो लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, जहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज द पी क्यू, राइट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज पी क्यू। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू b1 cross b2. We are not going to prove this, we are to just learn the formula because in examinations we have only questions related to that, and there is one mistake in NCERT page number 475. It is a2 minus a1 vector, not cross product. In your NCERT it is given cross product. So b1 cross b2 dot a2 minus a1 upon b1 cross b2. Here we have cross product and we are doing the distance, therefore we have to apply the magnitude, and this is the vector form. This distance we are finding using the vector form, right? Similarly, if we have Cartesian form, then what we have to do? Like if we have this kind of lines, जैसे कि line 1 like this, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, b1, and z minus z1 upon c1. This is the Cartesian form of a line. Cartesian form of a line. And second one is line 2 is x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, and z minus z2 upon c2. These are the two lines. और अगर हमें यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज we are to take the determinant x2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z1. Here we have a1, a2, b1, b2, and c1, c2. After taking this, you are to divide the whole determinant with the square roots of these, like this. I think this formula is quite difficult. I will suggest you to learn only vector form. This is c1, a2. ये याद कर सकते हो, अदरवाइज हमें तो याद नहीं होते इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बेटा ये आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, ये बहुत इजी है। मैं यही रेफर करूंगी कि आप ये लर्न करो, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1. So this is the shortest distance between two skew
lines, it is the distance between two skew lines, right? Now we are to do the distance between two parallel lines. तो पहले हम इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे स्क्यू लाइंस की, फिर हम पैरेलल लाइंस करेंगे. सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर इट इज 476. So students, here I have two lines. Find the shortest distance between two lines, line 1 and line 2 whose vector form is given. देखो आपको ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म गिवन है, तो अगर आप इस वेक्टर फॉर्म को इसके साथ कंपेयर करो कि r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर, उसके बाद उनको नेमिंग दे दो b1, a1, a2, b2, राइट. तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हम यहाँ से a1 वेक्टर लिखेंगे. a1 वेक्टर क्या है? दिस इज योर a1 वेक्टर एंड दिस इज योर a2 वेक्टर. तो a1 वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप and a2 vector is 2i cap plus j cap minus k cap. Similarly, we will write b1 vector. b1 vector is 2i cap minus j cap plus k cap and b2 vector is 3i cap minus 5j cap plus 2k cap. I am going to put all the values in the given formula. तो सबसे पहले तो मुझे b1 और b2 vector का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है. So let us find its cross product. How to find it? By taking its डिटर्मिनेंट, राइट. तो हमने आई जे के लिख लिया. अब b1 के कंपोनेंट लिख दो 2 माइनस 1 एंड 1 के कंपोनेंट 3 माइनस 5 एंड 2. इसके बाद आई कैप इंटू आई कैप की रो एंड कॉलम को लीव करोगे तो आपके पास बचेगा -1 1 माइनस 5 2 माइनस. वीडियो पॉज करके आप प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिए. 2 माइनस 1 3 माइनस 5. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 3i कैप माइनस j कैप minus 7k cap. So this is your b1 b2 magnitude. अब क्रॉस प्रोडक्ट. अब हमें इसका लेना है मैग्नीट्यूड. हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो हम क्या करेंगे? कंपोनेंट्स का कर देंगे स्क्वायर. ये देखो हमने कंपोनेंट्स का कर दिया स्क्वायर. आफ्टर स्क्वायरिंग दिस वी विल गेट 9 प्लस 1 10 और 49, दैट इज 59. तो b1 क्रॉस b2 इज 59. अब हम निकालेंगे a2 और a1, a2 माइनस a1. Now let us find a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. तो अब यहाँ से देखो आपका a2 वेक्टर जो भी था और a2 और a1 को माइनस कर दो. देखो सीधा ही लिख रही हूँ मैं 2 माइनस 1 i कैप, j आपका कैंसिल हो गया और माइनस k, दिस इज माइनस k कैप. सो a2 माइनस a1 वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप. a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप. अब देखो बेटा हम क्या करेंगे? b1 और b2 वेक्टर की निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. वेट, b1 और b2 वेक्टर की हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाली हुई है और a2 और a1 को भी हम लिखेंगे और दोनों की निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट. तो देखो b2 और b1 वेक्टर हमारे पास क्या था? 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप और a2 माइनस a1 i कैप माइनस इट इज k कैप, i कैप माइनस k कैप. ठीक है. तो देखो i को i से मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू 1 प्लस को j से करना है मतलब 0 एंड k को k से करना है -1. सो इट इज 3 0 एंड 7 दैट इज इक्वल टू 10. सो पुट ऑल दिस इन द फॉर्मूला. तो हमारा फॉर्मूला क्या था? सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं. हमारा फॉर्मूला था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो b1 क्रॉस ये सारी डॉट प्रोडक्ट ओवरऑल मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास आया था 59. सो दिस इज योर डिस्टेंस. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. द नेक्स्ट टॉपिक आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.